जो क्लास 8 बिहार बोर्ड और चैप्टर का नाम है स्लीप यानी सोना। इंग्लिश का किताब है और सभी बच्चों को पहले रीडिंग करना है, फिर उसके अर्थ को हम समझाएंगे। ठीक है ना? तो बोलो सभी बच्चे, बोलो नो बडी नोज व्हाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। आवर बॉडी नीड्स sleep to stay healthy and fight sickness. During sleep, our muscles, bones and skin can grow and muscles, skin and other parts can fix injuries. Our brain needs sleep. Sleep helps our brain to remember what we learn. It also helps brain to pay attention and concentrate. There are no rule about how much sleep is necessary, but an average adult sleeps for 7 hours and 20 minutes. About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep, and 4% want 10 hours or more. Children at the age of 5 to 12 years need 10 to 11 hours of sleep each night. Babies need between 14 to 18 hours, whereas the elderly need less than they did when young. They often take a nap during the day. There are 5 stages in one sleep cycle. Each sleep cycle takes about 19 minutes. The sleep cycle is repeated 5 or 6 times during the night. During the stages 1 and 2, you first fall asleep but are not yet in a deep sleep. During the stages 3 and 4, you are in the deep sleep. Your breathing and heart rate slow down and your body is motionless. During the 5th stage, your brain is active and you dream. You dream during the stage of sleep called rapid eye movement or REM. REM. During the REM, your eyes move under your eyelids rapidly. Normal sleep is made up of 2 alternating phases. Phase 1 involves no dreaming. Usually, it occurs in the early part of the night. Phase 2 involves dreaming. It occurs mostly in the later part of the night for varying periods of time. If you wake up during this phase, you will almost certainly remember your dreams. When we sleep, the bodily functions slow down. Body temperature
false. This is because our body keeps to a regular 24-hour cycle during which body temperature rises and falls at fixed times. Normally, body temperature is lowest in the middle of the night and the highest in the afternoon. When you get enough sleep, you can pay attention better in school. You creative and think of new ideas, fight sickness, so you stay healthy, be in a good mood and get along well with friends and family. If you don't get enough sleep, you can forget what you learned, have trouble making decisions, be in a bad mood, have trouble playing games, have trouble listening to parents and teachers, and be less patient with friends, brothers and sisters. Sometimes everyone has difficulty in sleeping, but if you miss a couple of hours of sleep, no learn is done. You may feel tired and irritable the next day, but the body soon makes up for the loss. However, if you try to stay awake night after night, you soon begin to behave strangely. You lose the ability to concentrate and your judgment get impaired. You begin to imagine strange things and your behavior becomes deranged. A lot of people have serious sleep problems. Some people find that they cannot sleep. Some wake up in the middle of the night or too early in the morning. There are a number of causes. Worry and depression are the most common causes. All kinds of things in the environment can affect sleep: noise, light, heat, cold, or new surroundings. Pain in illness can also keep people awake. Most of us can accept temporary sleeplessness without seeking help. Many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder of sleeplessness called insomnia. It is better to avoid them if we can. It is much better to identify the problem and remove it. किसी बच्चों को अब नहीं बोलना है, हम इसका हिंदी समझा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है, कहानी स्लीप है और ये क्लास 8 का दूसरा चैप्टर है, ठीक ना। समझो, कहता है इसमें nobody knows, कोई भी आदमी नहीं जानता है why we sleep, हम क्यों सोते हैं। कोई भी आदमी ये नहीं जानता है कि हम क्यों सोते हैं, बट लेकिन we all need to, लेकिन हम लोग सोते हैं, ठीक है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप टू ग्रो। स्लीप हेल्प्स यानी सोना सहायता करता है आवर बॉडी, हमारे शरीर को, किस चीज में,
तो एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, हमारे दिमाग को विकसित होने में, ठीक है, और बढ़ने में, ग्रो करने में, उनको सोचने की क्षमता विकसित करने में सोना दिमाग की क्षमता को, सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए सोना यानी स्लीपिंग जरूरी है। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। अरे हमारा शरीर नीड्स यानी जरूरत है सोना, क्यों? तो टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, और फाइट सिकनेस, और बीमारी से लड़ने के लिए। फिर उसके बाद है कहता ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दरमियान क्या होता है? तो आवर मसल्स, हमारा मांसपेशी यानी हमारा शरीर का मांस जो है, ठीक ना, उसके बाद करा बोन्स यानी हड्डियां, ठीक है, और स्किन यानी कि चमड़ी, ठीक है, ये सब क्या होता है? कैन ग्रो, ये सब बढ़ता है। एंड मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट कैन फिक्स इंजुरीज, और मसल्स मांसपेशी, चमड़ा, और जहाँ जहाँ कटा खुटा रहता है, इंजुरीज रहता है, यानी कि जुकाम क्या बोलते हो, कटा हुआ रहता है, ठीक है, जख्म रहता है, तो वो सब पार्ट जो है जुट जाता है आकर के, ठीक हो जाता है। कहता आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे दिमाग को सोने की जरूरत होती है, ठीक ना। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेम्बर वी व्हाट वी लर्न। स्लीप जो है वो क्या करता है? तो सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है? तो हेल्प्स आवर ब्रेन, हमारे दिमाग को जो है याद रखने में, कोई भी चीज़ को, ठीक ना, हम कोई भी चीज़ जो पढ़ते हैं उसको दिमाग में ज़्यादा दिन तक याद रखने के लिए हम लोगों को सोना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? सोना जरूरी है, ठीक है। जो आदमी ज़्यादा दिन तक नहीं सोया हुआ रहता है, 3 दिन 4 दिन तक, तो उसको देखोगे उसका याद, कोई भी चीज़ याददाश्त जो है वो कमज़ोर होने लगता है, वो बहुत सारी चीज़ों को भूलने लगता है। इसलिए जो है हम लोगों को सोना जरूरी है। कहता है इट ऑल्सो हेल्प्स, यह हमें सहायता करता है किस चीज़ में? तो ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसेंट्रेट, ब्रेन को जो है अटेंशन रहने में, ठीक है, और कंसेंट्रेट रहने में, दिमाग को संतुलित रखने में काम करता है। और कंसेंट्रेट, दिमाग को एक जगह केंद्रित करने में, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चे हमारी तरफ देख रहे हो और समझ रहे हो उसको अच्छे से, ठीक है ना। तो सोना जो है इसमें भी हेल्प करता है। अगर मान लो कोई भी आदमी सही से नहीं सोता है, कोई बच्चे सही से नहीं सोते हो, तो अगर मान लो टीचर पढ़ा रहे हैं कोई भी बात को, तो उसको ध्यान से बच्चे नहीं सुनेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। इसलिए सोना जो है दिमाग को केंद्रित करने के लिए, एक जगह स्थिर करने के लिए, उसके लिए भी जरूरी है। इसलिए जब एक आदमी अच्छा नींद लेता है तो उसको हर एक काम में मन लगता है। अगर पढ़ रहा हो तो पढ़ने में भी मन लगेगा, मान लो दूसरा कोई काम कर रहा है तो उसमें भी मन लगेगा। इसलिए जो है नींद प्रॉपर तरीका से होना ही चाहिए। फिर कह रहा है देयर आर नो रूल, कोई नियम नहीं है किसी के बारे में, तो अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, सोना कितना जरूरी है हमारे लिए। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, लेकिन जो है एवरेज यानी औसत, औसत लिया गया है। औसत बता चुके हैं सभी बच्चों को औसत क्या होता है। तो औसत जो है लिया गया है, एक एडल्ट आदमी यानी एक वयस्क आदमी, बड़ा आदमी जो है वो सोता है 7 घंटा 20 मिनट, ठीक है। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विद 5 आवर्स, 8% लोग जो है, बड़ा आदमी, एडल्ट आदमी, वयस्क आदमी खुश रहता है, 5 घंटा सोने से ही खुश रह जाता है, ठीक ना। लेकिन एवरेज आदमी 7 घंटा 20 मिनट सोता है, ठीक है ना। और कह रहा है एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर, और 4% आदमी जो है चाहता है हम 10 घंटा सोएं या इससे भी ज़्यादा सोएं, ठीक है ना। कह रहा है चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। बच्चे जो है 5 से लेकर के 12 साल तक का, ठीक ना, उसको 10 से 11 घंटा जो है सोने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तभी जो है उसका दिमाग जो है डेवलप होगा। कहता है बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, बेबी छोटा बच्चा, नवजात शिशु जो होता है, ठीक है, उसको बेबीज बोलते हैं, उसको जो है 14 यानी कि 14 से लेकर के 18 घंटा तक उसको सोना जरूरी है। सभी बच्चे इधर देखो। उसके बाद जो है वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग। कहता है जो वेयर एज, जैसे जैसे वो जो है मतलब बड़ा होते जाता है तो उसका जो है लेस देन दे डिड यंग, तो दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, ठीक है ना, उसका जो है सोने की अवधि जो है धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है ना। कहता है देयर आर 5 स्टेजेज इन 1 स्लीप साइकिल, सोने का जो है चक्र होता है, शयन चक्र होता है, हर चीज़ का चक्र होता है, साइकिल होता है।
जैसे जल चक्र होता है, तो जल चक्र क्या होता है, विज्ञान का क्वेश्चन है। वाटर साइकिल, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, उसके बाद मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो पानी धरती के अंदर चला जाता है, ठीक है। या देयर आर 5 स्टेजेज इन वन स्लीप साइकिल, हम जो सोते हैं उसका जो है चक्र होता है, उसको शयन चक्र कहते हैं। जैसे जल चक्र होता है, यानी कि पानी जो हम लोग पीते हैं, ये पानी जो है एक चक्र के रूप में यानी साइकिल के रूप में चलता है, जैसे पहिया घूमता है वो चक्र हो गया, ठीक है ना। तो जल चक्र क्या होता है, तो जैसे पानी हम लोग पीते हैं, ठीक ना, तो पानी जो पीते हैं हम, तो पानी वैसे नहीं मिलता है हम लोग को, ठीक है ना। देखता हुआ कभी बरसात के समय में पानी पूरा नदी में भरा हुआ रहता है, और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद पूरा पानी गायब हो जाता है, आखिर ये पानी जाता कहाँ है। सभी बच्चों ने ऐसा सोचा होगा, या फिर कोई बच्चा ऐसा सोचा ही नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि तुम लोग को पढ़ने से तो कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है ना। तो पानी जो है ये कहीं जाता उता नहीं है, ये गर्मी करता है, ठीक ना। ज़्यादा जो है सूरज का रोशनी ज़्यादा तेज जब पड़ता है, वो सब पानी भाप बन के उड़ जाता है, और फिर जो है वो बादल बन जाता है, और फिर धीरे धीरे वो संघनित होता है, और फिर जब अनुकूल परिस्थिति उसको मिलता है, फिर वो बारिश जो है वो बारिश के माध्यम से फिर धरती पर आता है पानी। फिर जंगल, नदी, पहाड़, जहाँ भी आदमी पानी नहीं डाल सकता है, सब जगह पानी से पूरा पट जाता है, ठीक है। और पेड़ पौधा सब भी सूखी हो जाता है, उसका पत्ता सब पे धूल मिट्टी लगा रहता है, वो सब साफ हो जाता है। फिर धरती के अंदर पानी जिसके धरती के नीचे चला जाता है, जिसको हम चापाकल के माध्यम से निकालते हैं, पोखर खोद के निकालते हैं, या फिर कुआं खोद के निकालते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारा पानी बह करके नदी में जाता है, नदी से बह के गंगा जी में जाता है, गंगा जी से जाकर के फिर समुद्र में जाता है, सब पानी नमकीन हो जाता है, फिर पानी वाष्पित होता है, फिर आसमान में जाके बादल बनता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र कहते हैं। उसी तरह से हम लोग जो सोते हैं वो भी शयन चक्र होता है उसका, ठीक है। तो शयन चक्र यानी कि स्लीप साइकिल 5 स्टेज का होता है। कहता है इच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स, यानी शयन चक्र जो है वो 90 मिनट का होता है। अब एक वयस्क आदमी, एक बड़ा आदमी 7 घंटा 20 मिनट सोता है, तो उसमें से एक शयन चक्र जो है वो 90 मिनट का होता है, यानी 1.5 घंटा का होता है। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक है, और 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, और 1 घंटे में कुल 3600 सेकेंड होते हैं, यानी 3600 सेकेंड होता है 1 घंटा में। तो देखो उसके बाद क्या कर रहा है, कहता है द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 to 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। स्लीप साइकिल यानी शयन चक्र जो है रात में 5-6 बार जो है अति होता है, क्या कहते हैं, टकराता है, ठीक ना। कहता है ड्यूरिंग द स्टेजेज 1 and 2, पहला और दूसरा स्टेज में कह रहा है यू फर्स्ट फॉल अस्लीप, हम लोग गहरी निद्रा में होते हैं, घोर नींद में सोया हुआ रहता है सब आदमी। कहता है बट आर नॉट येट इन ए डीप स्लीप, लेकिन उस समय जो है काफ़ी जो है गहरी नींद में नहीं सोते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेजेज 3 and 4, जब हम तीसरा और चौथा स्टेज में जाते हैं, अभी हम बताए थे इससे पहले कि हम लोग जो सोते हैं वो 6 स्टेज का होता है। तो फर्स्ट और 2 स्टेज में हम लोग जो है नींद में तो सोए रहते हैं, लेकिन ज़्यादा गहरा नींद में नहीं रहते हैं, ठीक है। और 3 और 4 वाला जो स्टेज होता है उसमें हम लोग सोते हैं, और एक शयन चक्र जो है 90 मिनट का होता है, उस हिसाब से जोड़ लो तीसरा और चौथा स्टेज कितना घंटा बाद होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यू आर इन द डीप स्लीप, जब हम जो है गहरी निद्रा में होते हैं, योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, हम जब सोते रहते हैं तो हमारा हृदय धड़कते रहता है। जिस दिन हृदय का धड़कन बंद हो गया उस दिन आदमी मर जाता है, ठीक है ना। हम सोते हैं लेकिन हमारा हृदय जो है वो धक धक करते रहता है 24 घंटा, ठीक है। 1 मिनट में एक मतलब स्वस्थ आदमी का हृदय जो है 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। और जो आदमी दौड़ के आता है उसका हार्ट बीट यानी कि हृदय का धड़कन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, जब हम सो जाते हैं गहरी निद्रा में तो हम लोग का जो हृदय का धड़कन है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, हमारा शरीर जो है मोशनलेस, गति एक रत्ती भी नहीं रहता, कुछ भी गति नहीं रहता शरीर में, यानी मोशनलेस हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, 5वां स्टेज जब होता है तो योर ब्रेन इज एक्टिव, हमारा शरीर जो है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है, ठीक ना। एंड योर ड्रीम, और 5वां स्टेज में हम लोग सपना देखना शुरू करते हैं, यानी कि 4 स्टेज तक गहरी निद्रा में सोते हैं, अब 5वां स्टेज में जब हम घुसते हैं उसमें सपना देखना शुरू करते हैं। योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। जब हम सपना देखना स्टार्ट करते हैं तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं REM, यानी रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। कहता है योर आईजेज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, हमारा आंख जो है वो मूव करता है, आईलिड बोलते हैं पलक को, ठीक है, तेजी से मूव करता है, ठीक है। कहता है
जो नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेज। नॉर्मल स्लीप यानी कि साधारण रूप से हम लोग जब सोते हैं तो ये 2 भाग में होता है, ठीक है। एक होता है फेज 1 इन्वॉल्व नो ड्रीमिंग, क्या कहते हैं, फेज 1 जो होता है इसमें जो है सपना हम लोग नहीं देखते हैं। इधर देखो सभी बच्चे, ठीक है। तो उसके बाद जो है यूजुअली इट ऑक्योर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, ठीक है। ये जो है रात के जो है अर्ली पार्ट यानी प्रारंभिक भाग में होता है। क्या होता है, तो ये सभी कुछ, ठीक ना। देखो उसके बाद कह रहा है जो फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, और दूसरा फेज में जो है हम लोग सोते हैं। दूसरा फेज में हम लोग क्या होता है, इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, और दूसरा फेज में हम लोग जो है सपना देखते हैं। दूसरा फेज में क्या करते हैं, सपना देखते हैं नॉर्मल स्लीप में। कहता है इट ऑक्योर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेराइंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो कह रहा है इट ऑक्योर्स, या प्रायः जो है क्या होता है लेटर पार्ट, रात के दूसरे वाले पार्ट में, ठीक ना, वेराइंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अलग अलग अवधि में अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, और जब हम जगे होते हैं तो इस फेज में क्या होता है, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, और फिर हम जो है इस पेज में उस सपना को याद करते हैं। आगे देखो, तुम भी आगे देखो। उसके बाद जो है फिर क्या है, तो कह रहा है व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं तो द बॉडीली फंक्शंस, हमारा शरीर का जो है फंक्शन यानी कार्य करने का क्षमता जो होता है स्लो डाउन, यानी कि वो काफ़ी स्लो हो जाता है, यानी धीरे हो जाता है, ठीक ना। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारा शरीर का जो तापमान होता है, यानी गर्मी को तापमान ही बोलते हैं, ठीक ना, वो गिर जाता है, ठीक ना। और दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम्स। कह रहा है जो बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, शरीर का तापमान गिरता है, और दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि हमारा बॉडी जो है वो 24 घंटे का साइकिल को जो है यानी कि चक्र को जो है क्या करता है, तो बॉडी टेम्परेचर राइजेज, शरीर का तापमान बढ़ते रहता है और घटते रहता है, इसको वो मेंटेन करता है यानी फिक्स करता है टाइम के अनुसार, ठीक है। नॉर्मली जो है यानी प्रायः क्या होता है, तो बॉडी टेम्परेचर इज लोवेस्ट, शरीर का तापमान जो है लो हो जाता है, ठीक ना, इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। हम लोग का जो है यानी कि आधा रात को जो है हमारा शरीर का तापमान घट जाता है। हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। जिसका टेम्परेचर शरीर का बढ़ गया तो समझो उसको बुखार आ गया, ठीक है। तो हमारा शरीर का तापमान सोने के टाइम में घट जाता है, दोपहर में घटता है तापमान शरीर का, और उसके बाद रात में घटता है। कहता है व्हेन यू गेट एनफ स्लीप, जब हम पर्याप्त मात्रा में सोते हैं तो यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल। हम लोग स्कूल में अच्छी तरह से, जैसे बच्चे अगर रात में अच्छा से नींद लेगा तो वो रात में जो स्कूल में जो है वो बढ़िया से पढ़ सकता है, पढ़ने में उसको अच्छी तरह से मन लगेगा, ठीक है ना। कहता है बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, और हम लोग अच्छी अच्छी आइडियाज को, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। कहता है सो यू स्टे हेल्दी और फाइट सिकनेस, अगर हम अच्छे से नींद लेते हैं तो हम बीमारी से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, ठीक है ना। हमारा मान लो कोई भी बीमारी आदमी को जल्दी नहीं होगा अगर अच्छी नींद लेता है आदमी तो, ठीक है ना। कहता सो यू स्टे हेल्दी, और हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। बी इन ए गुड मूड, और हम अच्छी अवस्था में रह सकते हैं। एंड गेट अलॉन्ग वेल विद फ्रेंड्स, और हम लोग जो है दोस्तों के साथ, एंड फैमिली, अगर आदमी अच्छे से सोता है तो दोस्त के साथ या अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। अगर अच्छे से नहीं सोया हुआ है तो उसका स्वभाव क्या हो जाता है, तो चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए सोना सभी के लिए जरूरी है। कहता है इफ़ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, अगर हम पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, हम लोग जो चीज़ सीखे हुए हैं वो चीज़ को भूल जाते हैं। अगर हम अच्छे से नींद नहीं लिए हैं तो हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं या सीखते हैं वो चीज़ को हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। कहता है हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, और क्या होता है, तो हमें परेशानी होती है, मुश्किल होता है किस चीज़ में, तो कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने में। हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमको क्या डिसीजन लेना है, उसमें क्या निर्णय लेना है, उसको हम अच्छी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बी ए बैड मूड, और हम अच्छी मूड में, अच्छी अवस्था में नहीं रहते हैं। हैव ट्रबल पेइंग गेम्स, और हम लोग गेम यानी खेल भी अच्छी तरह से नहीं खेल सकते हैं। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, और फिर हम शिक्षक को भी अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं, या मान लो सभी बच्चों को मम्मी पापा घर पे जो कुछ कहते हैं उसको भी
नहीं सुन सकता है बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम अच्छे ढंग से नींद नहीं लिए रहते हैं तो अच्छे बच्चा जो है उसको फिर या तो टीचर की बात को नहीं सुनेगा, अनसुना कर देगा, या फिर जो है मान लो मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं करने के लिए तो उसको भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो नींद इसलिए बहुत जरूरी है सभी बच्चों को, ठीक है। एंड बी लेस पेशेंट विद फ्रेंड्स, और फिर जो है उसका जो है पेशेंट और फ्रेंड्स, यानी कि ना पेशेंट को भी जो है नींद अगर अच्छा से नहीं आ रहा है तो वो ठीक नहीं हो सकता है, और दोस्त सबके साथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ना तो उसका व्यवहार पेशेंट के साथ अच्छा रहेगा, ना फ्रेंड के साथ अच्छा रहेगा, और ना भाई के साथ और ना बहन के साथ। इसीलिए नींद जो है बहुत ही जरूरी है। अब क्या करा है, समटाइम्स एवरीवन, कभी कभी प्रत्येक आदमी जो है हैव डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, उसे जो है डिफिकल्टी होता है यानी कठिनाई होता है किस चीज़ में, सोने में। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, लेकिन जो है अगर हम मिस करते हैं यानी कि सोने के समय को, फिर क्या होता है, तो नो हार्म इज डन, ठीक है। तो यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, अगर हम अच्छे से नहीं सोते हैं, ठीक ना, तो हमें क्या पहुंचता है, हानि होता है, ठीक ना। यू मे फील टायर्ड, हम अपने आप को थके हुए महसूस करते हैं, एंड इरिटेबल, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है, जो आदमी सही से नींद नहीं लेता है प्रतिदिन, ठीक है। बट द, अब कोई भी आदमी कुछ बोलेगा तो उसको जो है आदमी मुंह झाड़ के बोलता है, ठीक ना, उसका कारण है उसको नींद नहीं आ रहा है सही से। बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर ए लॉस, ठीक है, उसका शरीर जो है लॉस होते जाता है यानी घटते जाता है। हाउएवर, जैसा कि इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, ठीक है ना, इफ़ यू ट्राई, हम कोशिश करते हैं क्या चीज़ करने का, जागने का, नाइट आफ्टर नाइट, रात की रात जो है जागने का बहुत आदमी प्रयास करता है, ठीक ना। यू सुन बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, उसका जो है व्यवहार अजीब टाइप का हो जाता है, वो फिर अच्छा आदमी के साथ व्यवहार नहीं करने लगता है। इसका मतलब है कि उसके साथ नींद की कमी है, ठीक ना। यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट इंस्पायर्ड, यू लॉस, उसको जो है हम खोते जाते हैं किस चीज़ को, तो एबिलिटी टू कंसंट्रेट, अपने दिमाग को जो है कोई भी चीज़ सोचने की क्षमता को, मान लो कोई भी बात कोई कह रहा है उस बात को हम ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, उसका कारण है कि हम नींद सही से नहीं ले पा रहे हैं। एंड योर जजमेंट गेट इम्पायर्ड, हम जो कोई भी चीज़ का निर्णय लेते हैं वो निर्णय भी जो है वो क्या हो जाता है, तो इंस्पायर्ड हो जाता है, यानी कि हम लोग जो है निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं। कहता है यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंथ थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम डीअरेंज्ड, और हम लोग का जो है इमेजिन, यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ सोचते हैं, ठीक ना, या फिर कहीं पे कोई भी चीज़ में ध्यान लगाते हैं काम को करने में, तो वहाँ पे ध्यान लगता ही नहीं है, और हमारा व्यवहार जो है अजीब टाइप का हो जाता है और अव्यवस्थित हो जाता है, हम निर्णय सही से नहीं ले पाते। कहता है ए लॉट ऑफ पीपुल, बहुत सारा आदमी क्या करता है, हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, उसको सीरियस मतलब जो है बहुत सीरियस रूप से सोने लगता है, यानी कि रात में कोई आदमी आवाज़ करता है सोने में, ठीक है ना, उसी को सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स कहते हैं। या फिर जो है उसको जो है सम पीपुल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, वो रात में उसको नींद ही नहीं आता है। सम वेकअप इन द मिडल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत आदमी को आधी रात को सोने का आदत होता है, ठीक ना, और फिर क्या करता है अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, और सुबह में देर तक सोता है। और फिर इसमें कह रहा है जो कुछ आदमी जो है रात में सवेर सोता है और सुबह में जो है सवेरे उठता है, ठीक ना। देयर आर ए नंबर ऑफ काउजेज, बहुत सारा कारण है। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन काउजेज, आदमी को रात में नींद नहीं आना इसका बहुत सारा कारण है। या तो चिंता होता है, चिंता के कारण नींद नहीं आता, या डिप्रेशन के कारण, कोई भी तरह का डिप्रेशन हो, अवसाद हो, उसके कारण नींद नहीं आता, ये सब कॉमन कारण है इसका। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, नाइस लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स का। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक ना, प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण को इफेक्ट करता है, जिससे हमारे सोने को नुकसान पहुंचता है। उसका कारण है एक, जैसे नाइज यानी हल्ला अगर हो रहा है, शोर हो रहा है तो नींद नहीं होगा, रोशनी आ रहा है तो उसमें भी नींद नहीं होगा, हीट अगर क्या कहते हैं गर्मी है ज़्यादा तो उसमें भी नींद नहीं आएगा, ज़्यादा ठंडा है तो उसमें भी नींद नहीं आएगा, और अगर नया सराउंडिंग में अगर हम दूसरे जगह गए हुए हैं तो वहाँ भी नींद नहीं आएगा जल्दी। कहता है पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपुल अवेक, अगर दर्द हो रहा है या हम बीमार हैं, ठीक है, यानी बीमारी में अगर दर्द हो रहा है कोई भी चीज़ का, तो उस वजह से भी हमको नींद नहीं आएगा, आदमी रात का रात जगा रह जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोरली स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, ठीक है। मैनी पीपुल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स बट
ठीक है। तो कह रहा है मोस्ट ऑफ अस एक्सेप्ट टेम्पोररीली स्लीपलेसनेस, बहुत आदमी को जो है ना अस्थायी रूप से नींद जो है आता ही नहीं है, अनिद्रा का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, विदाउट सीकिंग हेल्प, ठीक है। उसका अगर कोई आदमी खोज नहीं करता है किस कारण से नींद नहीं आ रहा है, मैनी पीपुल बिकम एडिक्टेड, ठीक है, यानी कि स्लीपिंग पिल्स, नींद अगर नहीं आ रहा है तो नींद का गोली लेता है नींद लाने के लिए, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर, ये जो है द डिजॉर्डर ऑफ स्लीप लेसनेस कॉल्ड इंसोमिया, तो उसको जो है इसके कारण अगर दवाई लेता है कोई भी आदमी, नींद का गोली लेता है, तो नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ, ये जो है नींद लाने का कोई अच्छा उपाय नहीं है, ठीक ना। इससे क्या हो जाता है, तो उसको इंसोमिया नाम की बीमारी हो जाती है। इंसोमिया को बोलते हैं, नींद जिसको नहीं आता है तो उस बीमारी को हम लोग इंसोमिया बोलते हैं, तो वो बीमारी उसको हो जाता है। कहता है इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, ठीक है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसको टालना नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसका कारण ढूंढ के इसको जो है सही करना चाहिए। इट कैन मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, इट इज मच बेटर, इससे अच्छा है टू आइडेंटिफाई, ठीक ना, इसको जो आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए यानी पहचान किया जाए किस कारण से नींद नहीं आ रहा है, द प्रॉब्लम, उस समस्या को, और उसको रिमूव इट, उसको जो है समय रहते उसका निदान कर लिया जाए। तो ये तुम्हारा स्लीपिंग कहानी था, ठीक ना, क्लास 8 का, और बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक ना।